طریقے سے ایک وہ صحابی رسول ہیں جو ملک یمن کی سرزمین پر آپ کا مزار مبارک ہے. دور طالب علم میں ہمیں ان کی مزار پر حاضر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع نصیب فرمایا. معاملہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت الحق کے خطوط کو روانہ فرمایا تھا اور خطوں کو لکھ کر کے لوگوں کی طرف بھیجا کرتے تھے. اسی علاقے میں ایک وہ شخص تھا جس نے اپنے آپ کو پھر سے نبی ہونے کا معاذ اللہ دعویٰ کر لیا تھا. ایک جھوٹا مکار نبی بن چکا تھا. وہ اپنے آپ میں خود ساختہ نبی بن کر کے لوگوں کے دین و ایمان سے کھیلنا چاہتا تھا. وہ کہتا تھا کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں, تم بھی اللہ کے رسول ہو. معاذ اللہ, آدھی زمین تمہاری ہے, آدھی زمین میری ہے. وہ بدبخت یہ سمجھتا تھا کہ زمین کے لیے رسالت کا اعلان کیا جا رہا ہے, زمین کی حکومت کے لیے بنایا جا رہا ہے. اللہ کی قسم, اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے ایسا شان والا بنایا کہ زمین کے تمام خزانوں کی کنیاں زمین تو زمین ہے, جنت کے جو سردار بنایا ہے, ان کے لباسوں کو, ان کے شہزادوں کو اللہ تعالیٰ نے سیدہ شباب اہل جنہ فرمایا. حسن و حسین ان کے نواسے, ان کے شہزادے جنت کے سردار, جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, اور ان کی شہزادی جنتی عورتوں کی سردار ہیں. پھر انہیں سرداری کی کیا حاجت ہوگی, پھر انہیں حکومت کی کیا طلب ہوگی. جدھر ٹھوکر مار دے ادھر پانی تو ابلتا لوگوں نے دیکھا. اگر خدا کے رسول چاہے تو سونے کے پہاڑ نکل. حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا تھا, یا رسول اللہ آپ اشارہ فرمائیں, یہ احد کا پہاڑ جو کم و بیش 15-20 کلومیٹر تک کے لمبا ہے اور چوڑا بھی ہے, تو یہ آپ کے ساتھ سونا بن کر کے چلنا شروع کر دے. حکومت اگر چاہنا ہوتا تو کچھ اور مل جاتا. حکومت نے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکومت کو چاہا ہی نہیں. انہوں نے صرف یہ چاہا کہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیں, اللہ کی رحمت کا حصہ انہیں اللہ تعالیٰ سے مل جائے, وہ رحمت کے حقدار ہو جائیں. یہی آپ نے خواہش فرمایا. اس نے یہ سوچا کہ آدھا تمہارا آدھا میرا سمجھوتا ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی طرف جواب میں خط لکھ کر کے بھیجا کہ تو جھوٹا ہے, تیرا دعویٰ جھوٹا ہے, اور جان لے اللہ کی ساری زمین اللہ اور اس کے رسول کے لیے. تیرے بانٹنے سے تجھے نہیں ہے اور ہمارے چاہنے سے نہیں. اللہ نے رسول کو وہ نعمت و سرفرازی و شان عطا فرمائی ہے, اور پھر فرماتے ہیں کہ میں ہی آخری نبی ہوں, نبی پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے. جب یہ اعلان لے کر کے پہنچی, جب یہ خبر انہیں سنانا تھا, تو تاریخ کا, دنیا کا ایک اصول ہے, کوئی میسج لے کر کے اگر کسی دوسری کنٹری میں یا دوسری حکومت میں کوئی پیغام لے کر کے پہنچتا, تو اس پیغام پہنچانے والے کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا جاتا تھا, اس کو مارا پیٹا نہیں جاتا تھا. بطور مہمان اس کو اچھا سلوک کیا جاتا, کھلایا پلایا جاتا, پھر اس کو جو پیغام جواب میں دینا ہے دے کر کے بھیج دیا جاتا, یا نہیں تو ایسے ہی اس کو واپس بھیج دیا جاتا. مگر ان بدبختوں نے, ظالموں نے کیا کیا, سوچا کہ انہیں ڈرا لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی زبان سے کوئی بات نکل جائے, انہیں ڈرا کر کے ہم اپنے برتری کا اعلان کروا دیں. انہوں نے یہ سمجھا ہوگا شاید کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی معاذ اللہ ڈرا کر کے لوگوں کو اسلام کا اثر ان کے دل میں اتارا ہے. خدا کی قسم کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے. رسول اللہ کی ذات کو خدا نے ایسا بنایا جو ایک مرتبہ ان کے چہرے کو دیکھ لیتا وہی کا دیوانہ, ان کی زبان سے نکلتا لوگ سن کر کے دل پر اس کا اثر دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول کی شان کو اللہ نے بہت بلند و بالا بنایا. معاملہ ہوا, اس نے سوچا کہ اس پر ظلم و زبردستی کی جائے تو یہ مجھے بھی, میرا بھی خدا کا رسول ہونا مان لے گا معاذ اللہ. انہوں نے چاہا اور ظلم کرنا شروع کیا, مارا پیٹا گیا. مگر جو عاشق صادق ہوتے ہیں, جو اللہ کے رسول کی محبت میں, خدا کی رحمت کے چھلوں میں جن کی زندگی جینا خدا مقرر فرما دیتا ہے, ان کی نظر ہمیشہ دنیا کی تکلیف پر نہیں ہوتی ہے, ان کی نظر ہمیشہ آخرت کے عذاب پر ہوا کرتی ہے, ان کی نظر ہمیشہ دنیا کی راحت پر نہیں ہوتی ہے, ان کی نظر ہمیشہ آخرت کی راحت پر ہوا کرتی ہے. انہوں نے آخرت کی راحت پر دنیا کی راحت کو قربان کرنے کو گوارا کر لیا. انہوں نے آخرت کی تکلیف پر دنیا کی تکلیف کو گوارا کر لیا, انہوں نے برداشت کرنے کا ارادہ کر لیا. ظلم ہوتا رہا, ان سے یہی کہا جاتا رہا کہ تم ایک مرتبہ تو کہہ دو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں معاذ اللہ. وہ صحابی جلیل یہی جواب دیتے تھے کہ میرے کان تیری بولی کو سننے سے بہرے ہو چکے ہیں, تو کیا بول رہا ہے میں سن ہی نہیں رہا ہوں. جب ان سے پوچھا جاتا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو, مچل کر کے عاشق صادق حاضر کرتے, اقول اشہد ان
کہ وہ اللہ के सच्चे रसूल हैं, अल्लाह के सच्चे बंदे हैं। जब उसके बारे में पूछा जाता, जवाब देते मेरे कान तेरी बातों को सुनने से पहले हो चुके हैं। जब आकाए रहमत आकाए दो आलम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाता, आशिक सादिक मचल के जवाब देता कि मैं उन्हें खुदा का रसूल जानता हूँ, खुदा का रसूल जानता हूँ। आपके ऊपर जुल्म हुआ, आपके आज़ा को जुदा करना शुरू कर दिया गया, हाथों को काट करके जिस्म से जुदा किया गया, पैरों को काट करके जिस्म से जुदा कर दिया गया। गोया कि आपका जिस्म मुबारक दोनों हाथ मुंहों से जुदा है, दोनों पैर कमर के पास से जुदा हो चुके हैं, जमीन पर डाल दिया गया है। उस आलम में भी उनसे पूछा जाता है, तब भी यही जवाब देते हैं, तू क्या कहता है मेरे कान नहीं सुनते हैं। जब रसूलुल्लाह के बारे में पूछा जाता तो कहते मैं खुदा की कसम मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह की शान मोमिनों की हुआ करती है, ईमान वालों की ये शान हुआ करती है। अजीजों, अल्लाह ने हमें ईमान अता फरमाया है, इस ईमान के हिफाजत के लिए परेशानी में परेशान हो जाना नहीं है, बल्कि अपने दीन पर मजबूती से कायम हो जाना ईमान वालों की शान है, और अपने अखलाक और किरदार को संभालना है। आज हम पर ये सारी परेशानियां, ये सारी तकलीफें क्यों आ रही हैं? हमने अपने अखलाक और किरदार को गिरा दिया है। आज हमारा पड़ोसी हमसे खुश नहीं है, आज हमारे मोहल्ले वाले हमसे खुश नहीं है, आज हमारे गांव वाले हमसे खुश नहीं है। हमारी ज़बान की तकलीफ, हमारे हाथों की तकलीफ, हमारी नस्लों की तकलीफ, हमारा सराबा दूसरों को तकलीफ देने वाला हमने बना लिया है, तो हम रहमत के अवतार कैसे होंगे? हदीसों में आता है, जो पड़ोसी को तकलीफ देने वाला होता है वो खुदा की रहमत से दूर हो जाता है। ये मफ़हूम है हदीस मुबारक का। और आज हमारा हाल है कि हम सबसे ज्यादा अपने आसपास के लोगों को ही सताते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। आज भी वक्त है कि आज हम अपने अखलाक को अल्लाह और उसके रसूल के सच्चे दीन के मुताबिक बना लेंगे, तो आज भी वही हाल होगा, आज भी वही गलगला होगा, फलक से समाप्त तक के यही आवाज गूंजेगी, दीन हक की सदाकत की आवाज बुलंद होती रहेगी। मगर अफसोस कि हमने अपने अखलाक को गिरा लिया है, गुनाहों को आदत बना लिया है, शराब को अपनी शान बना लिया है, हराम को अपनी आदत बना लिया है, हराम की ख्वाहिश को हमने अपने दिल में बसा लिया है। वक्ती तौर पर जब बात आती है तो ज़बान से तौबा कर लेते हैं। बनी इसराइल के कुछ लोगों की तौबा के मुतालिक से पैगम्बरान इस्लाम जो बनी इसराइल में अल्लाह ने सबसे ज्यादा पैगम्बरों को बनी इसराइल कौम में भेजा है, उन्हीं में से एक पैगम्बर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगार ये बंदे की तौबा को कबूल फरमा ले, ये बंदा तौबा कर रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है पूरी जमीन और आसमान की मखलूक मिल करके भी सिफारिश करेंगे तो नहीं करूंगा उसकी तौबा को कबूल। क्यों? इसलिए कि सिर्फ ज़बान से तौबा कर रहा है, दिल में उस हराम की ख्वाहिश अभी भी उसके दिल में बाकी है। जिस दिल में हराम की ख्वाहिश हो करके ज़बान से वो अगर तौबा करता है तो उसकी तौबा कबूल नहीं की जाती है। उस ख्वाहिश को छोड़ करके अगर वो बंदा तौबा करता है, अल्लाह ताला फरमाता है तौबा करो मैं तुम्हारी तौबा का कबूल करने वाला हूं। अल्लाह फरमाता है तौबा करो ताकि मैं तुम्हारी तौबा के जरिए तुम्हें कामयाबी अता फरमा दूं। फिर एक और मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है रब ताला की बारगाह में तौबा करो, रब की बारगाह में रुजू करो, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे हाल को बेहतर हाल से बदल देने वाला, तुम पर फजल फरमाने वाला है। अल्लाह ताला का फरमान है आज हम जो परेशानियों से गुजर रहे हैं इसमें हमारे अमाल का अमल दखल है, हमारे अमाल के बुरे असरात हैं जो आज हमारी जिंदगियों पर भी हमारे आने वाली नस्लों पर भी मंडराते नजर आ रहे हैं। आज भी हमें वक्त है कि आज हम अगर तौबा कर लें तो यकीनन कामयाबी हासिल हो जाएगी। हजरत मौला अली शेर खुदा फातिह खैबर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान मुबारक है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने दो अमानतें हमें अता फरमाई, एक अमानत तो हमसे पर्दा कर गई, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका हमारे दरमियान बज़ाहिर पर्दा फरमा चुके, आप दुनिया से रुखसत हो चुके, बज़ाहिर ज़ाहिर में आपने पर्दा फरमा लिया। फिर दूसरी तरफ फरमाते हैं तौबा अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया है, ये अमानत की हिफाजत करना है, यानी तौबा सच्ची तौबा करना है ताकि अल्लाह ताला की रहमत के हम हकदार हो जाएं। मगर अफसोस की बात है कि हम सच्ची तौबा से भी दूर हैं, अच्छे अखलाक से भी दूर हैं, अच्छे किरदार से भी दूर हैं, अच्छे अंदाज से भी हम दूर हैं। यही वजह है कि आज हम पूरी दुनिया में हम जलील और रुस्वा होते चले जा रहे हैं, परेशानियों का सामना हमें हो रहा है। आज भी अगर हम खुदा के सच्चे रास्ते पर सच्चाई के साथ कायम हो जाएं, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हम पर मेहरबानी फरमाएगा। आज अगर हम अपने अहवाल को, अपने हालात को बदलना चाहते हैं तो हमें तौबा के जरिए अल्लाह ताला की रहमत का हिस्सा हमें मिलेगा। हमें तौबा के जरिए अपने आप को अल्लाह ताला की रहमत
का हकदार बनाना है, अपने अखलाक को किरदार को संवारना है, इस्लामी अखलाक को आदाब रसूलुल्लाह की सुन्नतों को अपने वजूद में बसा देना है और अपने ख्याल और अफकार और नजरियात को दीन की सच्ची तालीमात के ताबे कर देना है। दिल जो चाहे, ख्वाहिश जो हो, नफ्स जो चाहे वो नहीं करना है, वो नहीं बोलना है, वो नहीं सोचना है, बल्कि वो सोचना है जो खुदा और रसूल की सोच हमें अता हुई है, वो बोलना है जो खुदा और रसूल के फरमान से हमें है, वो करना है जो खुदा और रसूल के फरमान से हमें करना है। यानी दीन के दायरे में रह करके सोचना है, दीन के दायरे में रह करके बोलना है, दीन के दायरे में रह करके जिंदगी जीना है, दीन के दायरे से हट करके अपने आप को हिलाकत में नहीं ले जाना है। जब हम इस राज को जान जाएंगे, इस पर कामिल तरीके से अमल पैरा हो जाएंगे, यकीनन आज भी कामयाब हो जाएंगे, कल भी कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, जो कहा गया सुना गया, परवरदिगार कहने में सुनने में जो गलती हुई से माफ फरमा, परवरदिगार जो हक व दुरुस्त कहा गया उसे हमारे सीनों में महफूज फरमा, परवरदिगार तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मौला मुसलमानों पर रहम फरमा, परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ फरमा, परवरदिगार हमें नेक अखलाक वाला बना, तेरे हबीब की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना, परवरदिगार हमें दुनिया में रुसवाई से, आखिरत में रुसवाई से महफूज फरमा, जान माल ईमान इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, परवरदिगार हमें तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, परवरदिगार गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। जो कोई भी जुल्म करने वाला है, फितना फसाद फैलाने वाला है, मौला हर जालिम व मुफसिद को नेस्त नाबूद फरमा, अमन अमान चैन सुकून सलामती अता फरमा, मजलूमों की मदद फरमा, जालिमों को नेस्त नाबूद फरमा, जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा है मौला मुसलमानों पर उनकी मदद फरमा, परवरदिगार मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा, जालिमों को नेस्त नाबूद फरमा, बेवाओं यतीमों बेसहारों के सहारे और उनके असबाब मुहैया फरमा, जिंदगी की बेहतर जिंदगी के गुजारने के तौर तरीके असबाब अता फरमा, जिनके घरों में जवान बेटे बेटियां भाई बहनें शादीशुदा इनके शादी के असबाब मुहैया फरमा, इनका बेहतर और ज़ाहिदा मुस्तक़बिल फरमा, तमाम मोमिनात रिश्ते ज़वाज में मोहब्बत मवद्दत शफ़क़त रहमत इनायत अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व मा अलैना इल्ला अल-बलागुल मुबीन।